وبركاته مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 6 فروری 2022 بروز اتوار ہے اور جنوبی پنجاب ضلع لودھرا کی عظیم درسگاہ جامعہ باب العلوم کہروڑ پکا کی ختم البخاری کی تقریب ہے. استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں علماء احناف، علماء دیوبند اور حدیثی خدمات کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں. میرے دوستو، ہماری اسٹیج پر شیخ المشائخ حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. میں ٹو دا پوائنٹ چند باتیں کر کے آپ سے اجازت لوں گا. میرے دوستو، حدیث پاک کے اوپر حضرت استاذ محترم بات فرما چکے ہیں. میں اپنے عنوان کو بیان کرنے کے لیے تمہیدی طور پر یہ بات عرض کرتا ہوں. پیغمبر کریم کی حدیث کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم تو چھوڑو، اللہ کی کتاب تو چھوڑو، حدیث کا بھی انکار کرے تو وہ بے ایمان بن جاتا ہے. جب فرعون کو غرق یابی ملی تھی اور فرعون ڈوبا تھا تو فرعون نے اللہ کی کتاب تورات کی زیارت نہیں کی تھی. فرعون تورات دیکھتا، انکار کرتا تو کہا جاتا اللہ کی کتاب کا منکر ہے، کسی وجہ سے ڈوبا ہے. حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ فرعون کے مرنے کے بعد تورات اتری. تو جب فرعون غرق ہوا، تورات دیکھی نہ تھی، سنی نہ تھی، پڑھی نہ تھی، نازل نہ ہوئی تھی. تو فرعون غرق ہوا، اس کی ایک ہی وجہ ہے. نکات افغانی میں حضرت شمس الدین افغانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس نے حدیث موسیٰ کا انکار کیا تھا. حدیث کا انکار کرنا اتنی بڑی خباثت کی بات ہے کہ رب اس شخص کو فرعون بنا دیتے ہیں. اور میرے دوستو، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو پیغمبر کے حدیث اور اللہ کے قرآن سے منہ پھیرے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہے. سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 32 اٹھائیے. رب کریم فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر اعلان فرما دے میری بات بھی مانے، تیری بات بھی مانے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تیری اور میری بات سے یہ لوگ پھرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے کبھی پیار نہیں رکھتا. اس سے پتہ چلا اللہ کی بات کا منکر، پیغمبر کی حدیث کا منکر مسلمان نہیں رہتا. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 36-22 پارے کا پہلا صفحہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. پیغمبر فیصلہ کر دے، بندہ مؤمن رہنا چاہتا ہے تو اسے مانے گا، عورت مؤمنہ رہنا چاہتی ہے تو اسے مانے گی. اگر پیغمبر کے فیصلے کا اور اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیں
یہ گمراہی کے گڑھے میں گر تو جائیں گے، مسلمان نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کی حدیث کی اتنی ویلیو، اتنا مقام ہے۔ اب آئیے میرے اکابرین، میرے اسلاف، میرے بزرگوں کی باتوں پر کہ انہوں نے حدیث پاک کی کتنی خدمت کی ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، میں چاہتا تھا میں امام اعظم سے شروع کروں، ان کے تلامذہ پہ بات لاؤں، ان کے شاگردوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ میں امام اعظم اور شیخین کو اور طرفین کو چھوڑ کر امام یحییٰ بن معین پر اختصار کے ساتھ آتا ہوں۔ اس امت محمدیہ میں امام اعظم رحمہ اللہ کے بعد ایک وہ شخص بھی گزرا ہے جس کا مقام و مرتبہ پیغمبر کی حدیث لکھنے میں اتنا ہے، جس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام علی بن مدینی فرماتے ہیں، یہ امام ابو بکر بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے، علی بن مدینی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر کی حدیث کی اتنی خدمت کی ہو جتنی یحییٰ بن معین نے کی ہے۔ یحییٰ بن معین وہ شخص ہے، کہتے کتبت بیدی الف حدیث، میں نے 10 لاکھ احادیث اپنے ہاتھ سے تحریر کی ہے۔ میرے دوستو، امام یحییٰ بن معین وہ ہے جب وہ پیغمبر کی حدیثیں لکھتے، وہ قلم کو چھیلتے، اس کا برادہ اکٹھا ہوتا، امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ طائف منصورہ میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے وصیت کی تھی اس کلموں کے برادے کو اکٹھا کیا جائے، جب میری وفات ہو مجھے غسل دینے کے لیے جس پانی کو جوش دے کر گرم کیا جائے، یہ برادہ استعمال کیا۔ یحییٰ بن معین وہ ہے جس نے اس طرح یہ خدمت کی ہے۔ ہاں جب ان کے انتقال کا وقت آیا، یہ مدینہ طیبہ میں تھے، جنت البقیع میں آج بھی ان کی قبر ہے۔ مجھے جب رب توفیق دے جنت البقیع کی سعادت و زیارت کی، تب میں جہاں اور صحابہ کرام، پیغمبر کی اہل بیت، پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بنات، پیغمبر کے صحابہ کی نیت کرتا ہوں، وہاں اس شخص کے لیے بھی دعائے خیر کی نیت کرتا ہوں۔ امام یحییٰ بن معین کا جنازہ مدینہ طیبہ میں اٹھا ہے، اور اس چارپائی پہ اٹھا ہے جس چارپائی پہ جنازہ اللہ کے رسول کو اٹھا۔ امام یحییٰ بن معین کے بعد آئیے امت محمدیہ میں ابھی ختم ہوا ہے، ختم بخاری کے ساتھ ختم طحاوی ہوا ہے۔ اے کاش باقی مدارس کے لوگ بھی اسے قابل تقلید بنائیں۔ امام طحاوی کون ہے؟ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ المتوفى 361 ہجری، احناف کے فقہاء کا، احناف کے محدثین کا وہ چمکتا ستارہ ہے، جس کے لیے میں ایک بات کہوں، آپ اس کی کتاب جو اس نے جمع کی ہے پیغمبر کی حدیث پر شرح معانی الاثار اٹھائیے، اس نے وہ کام کیا ہے جو رتبے میں اگرچہ سیاستہ کے بات ہے، لیکن اس امتیازی شان میں سیاستہ سے اوپر ہے، اس امتیازی وصف میں بخاری سے اوپر، مسلم سے اوپر، ترمذی سے اوپر، نسائی سے اوپر، ابن ماجہ سے اوپر، ابو داؤد سے اوپر ہے۔ وہ جزی فضیلت یہ ہے، امام ابو جعفر طحاوی پیغمبر کی حدیث لاتے ہیں، صحابہ کا عمل لاتے ہیں، پیغمبر کے اہل بیت کے فتاوی لاتے ہیں، پھر اس کے جواب میں ایک اور حدیثوں کے مواد کو ذکر کرتے ہیں، خالفہم آخرون قال آخرون کہہ کر پھر دلائل دونوں طرف سے لاتے ہیں۔ مثلاً حدیثوں میں کرنے کی بات ہے اور اس طرح حدیثوں میں نہ کرنے کی بات ہے، تو اس بات کی بات ملاتے ہیں، نفی کی بات ملاتے ہیں، حکم کی بات ملاتے ہیں، منع کی بات ملاتے ہیں۔ آپ کہیں گے بڑا کام کیا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی ہے، یہ تو مسلم میں بھی ہے، یہ ترمذی میں ہے،
इब्न माजा और नसाई और अबू दाऊद में है। तो इमाम तहावी लाए। तो बड़ा मकाम कैसा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, बड़ा मकाम ये है, बाकी किताबों वाले मुतारज रिवायत ला के फैसला उस्ताजुल मुहद्दिसीन पे छोड़ते हैं। इमाम तहावी हदीस पाक की तारुज को लाके नजर तहावी पेश करते हैं, हदीस का हल देते हैं और बताते हैं ये पैगंबर के पहले जमाने की है ये बात कर। ये नजर तहावी वो मकाम है, वो मर्तबा है, वो सिफत है, वो वस्फ इम्तियाजी है जो सिद्धा में नहीं। इतनी बड़ी हदीस की खिदमत इमाम अबू जाफर तहावी कर रहे हैं। और तहावी के बाद आइए, मैं आपकी खिदमत में हनफी एक बादशाह पेश कर रहा हूं, इमाम नूरुद्दीन जंगी रहमहुल्लाह। बड़ा नाम में है दुनिया में, जहां और इनके कारनामे, कब्र मुकद्दस और मुताहर, पैगंबर करीम के रोज़े अक़दस की हिफाजत के जहां ये मुहाफिज है, वहां एक और काम इनके लिए एक मुहद्दिस लाते हैं। इमाम अब्दुल कादिर कुरैशी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 775 हिजरी अल जवाहिरुल मुज़िय्या फी तबक़ातिल हनफिय्या में लाते हैं कि नूरुद्दीन जंगी वो है, वहुवा अव्वलु मन बना दारल हदीस अला वजहिल अर्ज़। इस धरती पे जिस शख्स ने सबसे पहले दारुल हदीस कायम किया है वो नूरुद्दीन जंगी अल हनफी है। और अहदीस की बात करने वालों, अहदीस की खिदमत को बताने, समझाने, सुनाने, बतलाने वालों, इस धरती पे पहला दारुल हदीस अहनाफ ने कायम। कैसे मेरे अकाबिर को, मेरे असलाफ को, मेरे बुजुर्गों को अहदीस की खिदमत से दूर रखा जा सकता है। और मेरे अकाबिरीन तशरीफ फरमा है, मैं दामन इख्तिसार रखते हुए आपकी खिदमत में बड़ा एक जंप लेकर आगे आ रहा हूं। बड़े बड़े लोग गुजरे हैं दरमियान में, लेकिन आइए उलमाए देवबंद, मैं उलमाए देवबंद पर अपने करीबी बुजुर्गों पर, करीबी अकाबिर पर आ रहा हूं। आसिमुल उलूम वल खैरात, बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हजरत इमाम मौलाना मोहम्मद कासिम अन्नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। और हजरत मौलाना अहमद अली सहारनपुरी रहमहुल्लाह ने हदीस पाक की इतनी खिदमत की है। सही बुखारी को लीजिए, बुखारी शरीफ के पहले बाबु कैफ़ काना बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिही क़ाल हद्दसना अल-हुमैदी क़ाल हद्दसना सुफयान क़ाल हद्दसना यहया से लेकर इमाम बुखारी की आखिरी बुखारी की आखिरी किताब किताबुत तौहीद व रद्द अलल जहमिया बाब वनज़ुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलुम यूज़न व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अश्काब तक वो तमाम की तमाम हदीस पाक का हाशिया और वजाहत इन दो बुजुर्गों ने लिख के दे दी। मुकम्मल रिवायात पर बहस। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़्फ़ा 852 हिजरी की तहकीक के मुताबिक 9082 बुखारी की रिवायतों की शरह इन उलमाए देवबंद की मरहून मिन्नत हाशिए की शक्ल में आज जो आपके पास नुस्खा है। और मेरे दोस्तों, थोड़ा इसके बाद आइए, फकीहुन नफ्स अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह को लीजिए। लामे उद्दरारी में इनके इफादात मौलाना यहया कांदलवी रहमतुल्लाह ने जमा फरमा दिए। आप आगे आइए, शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह को खोलिए। दरसे बुखारी के नाम से हजरत ने पूरी जिंदगी में जो सही बुखारी की खिदमत की है वो जमा करके आज आपके पास मौजूद है। थोड़ा हजरत मदनी से आगे चलिए। हजरत खातिमुल मुहद्दिसीन, सादात के चश्मो चराग, कश्मीर की धरती से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी सबूत हजरत अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह फैजुल बारी लिख के बुखारी की खिदमत करके अहदीस पाक की शरह लिखते हैं।
या अरबी जुबान में इनके इफादात जमा है। उर्दू में देख रही हो मौलाना अहमद रजा बिजनौरी इनके शागिर्द और दामाद ने अनवारुल बारी के नाम से हदीस की खिदमत तुम्हारे हाथों में दी। इससे भी आगे आइए, बानिए पाकिस्तान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह, जब पाकिस्तान बना तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में इनसे तिलावत करा के कायद आजम ने ऐलान करा पाकिस्तान बना। अल्लामा उस्मानी फजलुल बारी के नाम से सही बुखारी में पैगंबर की हदीस की खिदमत की तशरीह आपके सामने पेश कर। अगर मैं अपने अकाबरीन पर इससे भी आगे चलता हूं तो आइए, फकीह मिल्लत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के उस्ताद हज़रत मुफ्ती साहब ने गालिबन इनसे जलालैन की तफसीर पढ़ी है। मदरसा शाही मुरादाबाद के चश्मो चराग मौलाना इमरोही फखरुद्दीन इमरोही रहमहुल्लाह ईज़ाहुल बुखारी के नाम से पैगंबर की हदीस की खिदमत करते हैं। और अगर इससे भी आगे चलिए, इमाम अहलुस सुन्नत वल जमात मेरे शेख व मुर्शिद और मेरे उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह एहसानुल बारी के नाम से पैगंबर करीम की वो हदीसें जो सही बुखारी में उसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश। और इससे भी आगे आइए तो हमारे मौजूदा काबिरीन में मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमहुल्लाह इरशादुल कारी के नाम से, ये वो शख्सियत जिनसे शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने सही बुखारी का दर्स पढ़ा। मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी ने इरशादुल कारी के नाम से सही बुखारी की खिदमत उम्मत के हवाले की है। और अगर इससे भी आगे आई है, हजरत मौलाना सलीमुल्लाह खान रहमहुल्लाह ने कश्फुल बारी के नाम से सही बुखारी की खिदमत में 18 जिल्दें लिख दी है। इससे भी आगे चलिए तो इनामुल बारी के नाम से 2 किताबें मिलती हैं। एक मौलाना आशिक इलाही अल मदनी बुलंदशहरी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी के तमाम अशआर को जमा करके अशआर बुखारी की तशरीह लिखी है। यह मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहु ने इनामुल बारी के नाम से हदीस पाक की शरह लिखी। और इससे भी आगे आइए, शेखुल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर रहमहुल्लाह अल खैरुल जारी के नाम से हदीस पाक की शरह लिखते हैं। और हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह हाशिया बुखारी का उर्दू तर्जुमे में आपकी खिदमत में तोहफा पेश है। और मैं जिनके यहाँ बैठा हूँ हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमहुल्लाह रहमतुन वासिआ, उनकी दलीलुल कारी भी आपकी खिदमत में सही बुखारी की खिदमत है। मेरे दोस्तों, एक तफसील है, मुझे हजरत शेखुल हदीस दामत बरकातुहु मौलाना मुनीर मुनव्वर साहब ने उन्वान भी ऐसा दिया, फिर इख्तिसार भी फरमाया। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, तवज्जो रखना, आप मेरा साथ देना, मेरी आंखों में आंखें डालना, इंशाअल्लाह मैं आपका वक्त जाया नहीं होने दूंगा। मेरे दोस्तों, सही बुखारी के बाद सही मुस्लिम पे आते हैं। सही है इनमें दूसरे नंबर की किताब सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी इसको तहरीर फरमा रहे हैं। आओ, ये इमाम मुस्लिम आजमी है, ये पेश कर रहा है। और इस सही मुस्लिम की खिदमत बाकी मेरे काबिर तो छोड़ो, मैं काबिरीन उलमाए देवबंद पे आता हूँ और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ फकीहुन नफ्स अबू हनीफा सानी और मौलाना नानोतवी रहमहुल्लाह के क्लास फेलो और दोस्त दारुल उलूम देवबंद की रीढ़ की हड्डी मौलाना रशीद अहमद गंगोही अल हल्लुल मुफहम के नाम से सही मुस्लिम की खिदमत करते नजर आते। और बानिए पाकिस्तान अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह फतहुल मुल्हिम के नाम से सही मुस्लिम की खिदमत करते हैं। इनकी वफात हसरत आयात होती है, मज़ामीन अभी बाकी हैं। और अब जज़ाए खैर अता फरमाए मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहु को तकमिला के नाम से 5 जिल्दें लिख के इसकी तकमील करते हैं। और मेरे दोस्तों, सही मुस्लिम भी अगर आपको इस पर मजीद चाहिए तो फैजुल मुनइम
मौलाना सईद अहमद पालनपुरी रहमहुल्लाह, दारुल देवबंद के मोहतमी, दारुल देवबंद के सदर मुफ्ती, आपको मुकद्दमा मुस्लिम की तशरीह समझाते नजर आते हैं। और इसके साथ निअमतुल मुस्लिम, निअमतुल मुनइम मौलाना निअमतुल्लाह आज़मी हिंदुस्तान से आपको पूरी सही मुस्लिम की खिदमत करते हुए नजर आते हैं। और मेरे ज़िम्मे इख्तिसार है तो मैं जामे तिरमिज़ी पे आता हूँ। जामे तिरमिज़ी, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी तहरीर फरमाते हैं, और मेरे अकाबरीन ने तिरमिज़ी पर जो शुरुआत, जो खिदमत की है, रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह अल-कौकबुद्दुर्री के नाम से जामे तिरमिज़ी में पैगंबर की हदीस की शरह लिखते हैं। अत-तकरीरुद्दरासी के नाम से शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी तिरमिज़ी शरीफ का हाशिया लिखते हैं। हज़रत मदनी हदियतुल मुज्तबा के नाम से मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी की खिदमत करते नजर आते हैं। अल-अर्फ़ुश्शज़ी से अल्लामा कश्मीरी इसका हाशिया लिखते नजर आते हैं। अल-बर्दुश्शज़ी से मौलाना मुफ्ती असगर हुसैन देवबंदी इसकी तहरीर में तकरीर करते नजर आते हैं। अल-मसलकुज़्ज़की हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थाकवी रहमहुल्लाह लिखकर जामे तिरमिज़ी की तकरीर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुहद्दिस सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमहुल्लाह मारिफ़ुस सुनन लिख के जामे तिरमिज़ी की खिदमत करते हैं। मारिफ़ तिरमिज़ी मौलाना अब्दुल रहमान कामिलपुरी लिखकर इसकी खिदमत करते हुए नजर आते हैं। और मौलाना अब्दुल रहमान कामिलपुरी कौन है? जिनको हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी ने उलूम देखकर फरमाया था, अब्दुल रहमान तू कैमलपुरी नहीं, पूरा कामिलपुरी है। मौलाना इलाका छछ के चश्मो चौरा मौलाना अब्दुल रहमान कैमलपुरी मारिफ़ तिरमिज़ी के नाम से तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिखते नजर आते हैं। और शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमहुल्लाह ख़साइल नबवी में शमाइल तिरमिज़ी की बड़ी खुशबूदार शरह लिखते हैं। और इसके साथ आगे चलिए, उस्ताद ज़िल मुकर्रम इमाम अहले सुन्नत मौलाना शेख सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह ख़ज़ाइनुस सुनन लिख के जामे तिरमिज़ी की शरह लिखते नजर आते हैं। हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमहुल्लाह के वालिद मुकर्रम हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह दकाइकुस सुनन से तिरमिज़ी की शरह लिखते हैं। शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम तकरीर तिरमिज़ी और दर्स तिरमिज़ी से जामे तिरमिज़ी को हल करते नजर आते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर तिरमिज़ी शरीफ के बाद आगे चलिए, आप आइए सुनन नबी दाऊद पे। इमाम सुलेमान इब्न अशअस सजिस्तानी रहमहुल्लाह सुनन नबी दाऊद तहरीर फरमाते हैं, तो पैगंबर की इस हदीस पाक के इस मजमूए की खिदमत भी उलमाए देवबंद पीछे नहीं रहते। अब्दुर्रुल मंसूद उठाइए, हज़रत गंगोही के इफादात नजर आते हैं। इससे आगे चलिए, बज़्लुल मजहूद खोलिए, मुहद्दिस जलील अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी का कलम इसको तहरीर करते हुए इसकी शरह लिखते हुए नजर आता है। इससे भी आगे आइए तो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह हाशिया अबी दाऊद लिखकर पूरी तरतीब से हदीस पाक को हल करते हैं। अब तालीकुल महमूद उठाइए तो अल्लामा फखरुल हसन गंगोही इसकी तफसील देते हुए नजर आते हैं। और मेरे दोस्तों, सुनन नबी दाऊद के बाद सुनन नसाई पे आइए। इमाम अबू शुऐब अन-नसाई रहमहुल्लाह दिमश्की अश-शामिई, इन्होंने जो तहरीर फरमाई है सुनन नसाई, ये एक नसाई कुबरा है। फरमाते 70 जिल्दों में है, 2 जिल्दों में नसाई मुज्तबा है जो इन्होंने आपको और मुझे लिख के दी है। नसाई की खिदमत में अकाबरीन उलमाए देवबंद पीछे नजर नहीं आते, बल्कि अल फैज़ुस समाई के नाम से हज़रत रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह इसकी इफादात की शक्ल में शरह बताते हुए नजर आते हैं। मौलाना इशफाकुर रहमान कांदलवी हाशिया नसाई लिख के नसाई शरीफ की खिदमत फरमाते हैं। नसाई उर्दू में मौलाना खलीलुर रहमान आज़मी आजमगढ़ी ने इसकी पूरी तफसील लिख दी। और इब्न माजा पे आइए, इमाम इब्न माजा अल कज़वीनी रहमहुल्लाह, यकीन माने कज़वीन आप कभी जाओ और देखो। मैं हाल ही तुर्की से सफर पे जा रहा था, तो जब कज़वीन का ऐलान हुआ कि इसके ऊपर से हमारी फ्लाइट गुजर रही है, मैंने वहां की खिड़की से देखा,
मई के बर्फ पोश पहाड़ आपको भूल जाए, इतने ठंडे इलाके का रहने वाला इमाम इब्न माजा। तस्वीर इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह की सुनन इब्न माजा मौजूद है। हदीस पाक के मजमूए को जमा फरमाया है और एक तारीखी मजमुआ है। मेरे अकाबरीन इससे पीछे नजर नहीं आते, बल्कि अंजाउल हाजा को लिए मौलाना अब्दुल गनी मुजद्दिदी की शरह को मुल्ला मोहम्मद देवबंदी तफसील देते हुए नजर आते हैं। मा तमस्तु इलैहिल हाजा मुहद्दिस अब्दुल रशीद नोमानी लिखते हुए नजर आते हैं। इमाम इब्न माजा और इल्मुल हदीस मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी के कलम के एक शाहकार मौजूद। मेरे दोस्तों, ये तो सियासत की बात थी। अगर मैं इससे भी आगे चलना चाहूं, मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं चल सकता हूं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं। उलमाए हनाफ जितनी रिवायात पर अमल करते हैं, नमाज का मसला यूं टूटी यूं हुई, वुजू का मसला यूं टूटा यूं हुआ, ज़कात यूं फर्ज हुई यूं न हुई, रोजे का मसला, कुर्बानी का मसला, निकाह का मसला, तलाक का मसला, सुबह के मसाइल, शाम के मसाइल, दिन के मसाइल, रात के मसाइल, शादी के मसाइल, इद्दत के मसाइल, मीरास के मसाइल, जायदाद के मसाइल, कारोबार के मसाइल, जिहाद के मसाइल, अजान के मसाइल, तमाम के तमाम दीन के मसाइल को जो लिखा है, ये मौलाना अमीन सत्तर उकाड़वी रहमहुल्लाह की तहकीक के मुताबिक 12,90,000 मसाइल पर मुश्तमिल इस्लामी लॉ, इस्लामी कवानीन के मजमूए का नाम फिक़ह हनफी है। फिक़ह हनफी ये शुरू होती है किताबुल तहारा पे, खत्म जाके होती है किताबुल मीरास, किताबुल फराइज और मसाइल शत्ता पे। आज लोग कहते हैं तुम हनफी मसले पे अमल करते हो, तुम्हारे पास हदीस की दलील, कुरान की दलील, पैगंबर के सहाबा की दलील, हकीम उल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना हकीम अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के ज़हन अक़दस में ख्याल आया, इस पर क्यों ना हदीस इकट्ठी की जाए, दलाइल इकट्ठे किए जाए, मसाइल फजाइल को हदीस और कुरान, सहाबा के फतावे, अहले बैत के तामुल से दलाइल की दुनिया में मुदल्लल मुबरहन किया जाए, तो अपने भांजे बानी पाकिस्तान अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी अल मुहद्दिस नाक़िद साहिब क़वायद इलाह सुनन, ये इलाह सुनन लिखते हैं, क़वायद फी उलूमिल हदीस में इसका मुकदमा लिखते हैं और 32 जिल्दों में मुकम्मल की मुकम्मल अव्वल ता आखिर तमाम मसाइल अहनाफ को कुरान से, पैगंबर के फरमान से, सहाबा और अहले बैत के फतावा से 32 जिल्दों में हदीस की खिदमत करते नजर। ये इस धरती का एक अनमोल कारनामा, ये इस धरती का एक वो कारनामा है जिसे रहती दुनिया तक एक सुनहरी हुरूफ से याद किया जाएगा। मेरा दामन इस मसले पर बड़ा तवील है, पर अफसोस मेरे पास वक्त कलील है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।